Children, this is chapter 9, data handling, class 5th and subject maths. Children, before we start this topic, I would like to tell you that our tutorials involve the way we teach in the class, where we have to cover every aspect of the academic course. We do not take a particular section of the chapter as the video makers generally do. Our videos covers everything that you miss in your class. Children, one more thing we would like to convey to you that if you find any problem regarding any topic, please mention it in the comment box. We try to solve it in the moment we get it. So keep on watching it and suggest your other classmates to subscribe our channel. Thanks. बच्चों, हम यहाँ उस टॉपिक को पढ़ाते हैं जो आपकी क्लास में आपका पूरा कोर्स करने के लिए पढ़ाया जाता है। दूसरे वीडियो मेकर्स सिर्फ किसी खास टॉपिक पर ही ध्यान देते हैं और जिससे कि वो वीडियो ज़्यादा बड़े ना बन पाएं, लेकिन हमारे यहाँ हम आपके क्लास में पढ़ाए जाने वाले या कोर्स पूरा करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो जो टॉपिक पढ़ाने चाहिए, हम सब वो टॉपिक पढ़ाते हैं। बच्चों, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ऐसी समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। चिल्ड्रन, दिस इज data handling. Before going to data handling, I would like to tell you what survey is. There is one term which is called survey. Survey means collecting of data. Collecting of data means how data are collected. Suppose, now take your class 5th. You are in your class, suppose you are having 45 students in your class and you want to know what do they eat, what do they like in their lunch. Then children, the way each student will tell, you have to write, you have to note that those things, those likings of your friends. Suppose Ankit likes to eat burger. So you take a notebook and write Ankit and burger before the name of after the name of Ankit. And now the second student is Vedans. He likes to take pizza. The next is Mohit. He likes to have chapatis. And the next boy, or it may be girl, suppose Anushka likes to have veg biryani. So keep on writing the names of students and keep on writing the likings, their food likings. So every out of every 45 students, you have noted down their choice of eating. Now you can also write down the choice of other things, like which color Ankit do you like? He says, I like blue color. Which color Vedans you like?
Vedant says I like green color. What does Mohit says? He likes yellow. What does Anushka likes? She likes red. So, right after the names of every student, you can write also their choice of colors. Similarly, children, if you want to know what is the choice of their games, how you will do it? Ankit likes to play cricket. Vedant likes to play hockey. Mohit likes to play tennis. Basketball. And Anushka likes to play tennis. And similarly, children, you can like the choice of their games. You can note down their choice in your notebooks. So children, these are called the datas. You are asking every student of your class their choice of eating, their choice of liking of colors, their choice of playing games. So children, these are called the datas. What you have written down in your notebook are called data. And this is also called the survey, because you are going to every student and asking their choice of different fields. So this is called the survey. अब बच्चों, आपकी क्लास 5th में मान लीजिए 45 स्टूडेंट्स हैं और आप ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट की खाने की चॉइस क्या क्या है, तो आपने एक कॉपी लेनी है और उस पर हर स्टूडेंट का नाम लिखना है और उसकी लाइकिंग, खाने की लाइकिंग उसकी क्या है। जैसे अंकित को बर्गर पसंद है, वेदांश को पिज्जा पसंद है, मोहन को चपाती पसंद है, अनुष्का को वेज बिरयानी पसंद है। ऐसे करके आपको पूरे बच्चों के बच्चों के डाटाज इकट्ठे कर लिए। सिमिलरली ये डाटा खाने के ही नहीं हो सकते, वो किसी भी चीज के हो सकते हैं। जैसे अंकित को कौन सा कलर पसंद है, अंकित को ब्लू कलर पसंद है, वेदांश को ग्रीन कलर पसंद है, मोहित को येलो, अनुष्का को रेड। ऐसे करके उनकी सारी कलर चॉइसेस आप वो नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आप उनका खेलने की हॉबी, उनको कौन कौन से खेल पसंद है, अंकित को जैसे क्रिकेट पसंद है, वेदांश को हॉकी, मोहित को बास्केटबॉल और अनुष्का को टेनिस। ऐसे करके उनके गेम्स की लाइकिंग भी आप पूरे लिख लीजिए। तो जब आप पूरे अपने नोटबुक में सारी चॉइसेस ये इस टाइप की लिख लेंगे, तो हम किसी भी चॉइस को कहते हैं डाटा। हमने क्या किया, हम हर स्टूडेंट के पास गए, या हर अपनी क्लास ही नहीं हो सकती, किसी और क्लास में भी जा सकते हैं, तो हमने हर स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, उसकी चॉइस पूछी। इसे हम कहते हैं सर्वे। और जो चीज हम नोट करके लाए उसे हम कहते हैं डाटा। तो बच्चे, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सर्वे क्या होता है। कहीं जाना, डोर टू डोर भी आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में कभी कभी वो नोट करने आते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं और कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं। कुछ लोग आते हैं, तो इस ऐसे चीज को जो आके घर घर में जाके लोग कलेक्ट करते हैं जानकारियां, उनको हम सर्वे कहते हैं। सर्वे के बाद जो जानकारी मिलके आती है उसको हम डाटा कहते हैं। नाउ वी मूव फर्दर। अब बच्चों, आप समझ गए होंगे सर्वे क्या होता है और डाटास क्या होते हैं। तो आफ्टर सर्वे what we get is called data or data collection। इस सर्वे के बाद जो भी चीज आपके पास आती है, जो भी आप नोट करके लाते हैं, उसको हम डाटा कहते, उस
सर्वे से मिले हुए जो फिगर्स होते हैं उनको हम डाटा कहते हैं। अब चिल्ड्रन, डाटा हैंडलिंग कैसे की जाती है? डाटा हैंडलिंग के लिए हम, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो इर्रेलेवेंट हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, वो एक जैसे नहीं होते, तो हम उन डाटास को कलेक्शन करते हैं एक टेबल में और हम बनाते हैं उसके टैली मार्क्स। टैली टेबल, collecting of data in a reasonable or logical way is called tally table। डाटा को सही तरीके से लिखने को हम सही तरीके से बनाने के लिए हम टैली टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टैली टेबल में क्या होता है? टैली मार्क्स होते हैं। टैली मार्क्स समझने के लिए और डिटेल में हम आगे जाएंगे, लेकिन टैली मार्क्स के लिए अगर हमने डाटा किसी एक चीज का कलेक्ट किया है कि हमारे डाटा में कोई चीज 1 है, तो हम उसे आई की फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर 1, सिमिलरली 2 आईज रिप्रेजेंट 2, 3 eyes represent 3, as you have learned about the Roman numerals. So one eye stands for 1, 2 eyes stand for 2, 3 eyes for 3, and 4 eyes for represents 4, and 1, 2, 3, 4, and 1 cross eye represents 5. These are tally marks, children. Tally marks are represented by I. बच्चों, tally marks जो है एक आई अल्फाबेट जो होता है इंग्लिश का, उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आई 1 को रिप्रेजेंट करती है और 2 आई 2 की फिगर को रिप्रेजेंट करती है, 3 आई 3 की फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 आई 4 की फिगर को रिप्रेजेंट कर देती है, और 4 के बाद एक क्रॉस आई लगा देने के बाद वो 5 को रिप्रेजेंट करती है। अब बच्चों हम ये बताएंगे कि टैली टेबल बनाई कैसे जाती है। अब टैली टेबल बनाने के लिए मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी कि आपके यहाँ कि आपको कलर चॉइस, आपने अपनी क्लास की कलर चॉइस पूछी है, तो कलर चॉइस की तो यहां हम लिखेंगे अब कलर चॉइस आप अपनी नोटबुक में तो नोट किए हुए हैं, तो उसकी टैली टेबल कैसे बनाएंगे? हाउ टैली टेबल इज मेड out of the data you have collected in your class. Therefore, how it is made? Tally table is made like this: favorite. Suppose you have collected the data of colors likings of your classmates. Favorite colors of class 5th. So how tally table is made? See children carefully. You have noted down the color which was previously in your notebook. It was written in your notebook. So color, and we have to arrange it in tally marks. And next term is frequency. I will tell you about the frequency after making this tally.
red color. Children, suppose the students in your class, 10 students of your class like red color. So the repetition of the students means 10 students are like red color. So this is called the frequency. 10 students like red color. But how it is made in tally marks, represented in tally marks? 5 number. These are in tally marks. You will represent these liking of your colors like this. 5. This mark represents for 5. 5 and 5, 10. Now the next color is orange. Liking for orange is by 6 students. 6 students like orange color. Similarly, yellow color. Liking for yellow color is by 5 students only. Now take green color. Green color is liked by 11 students. 5, again 5 and then 1. 5, 5, 10 plus 1, 11 students. Now comes blue color. Blue is liked by, suppose 5 students, 9 students, 5, 1, 2, 3, 4, 9 students. And next is brown. Brown is liked by only 4 students. So this is 6 and 5, 11, 1, 12, 9, 21, 4, 25, 2 and 1, 3 and 1, 4. So this is the data of 45 students of your class. So whatever you noted down in your notebook, we have piled them, we have compiled them in the form of a table. This is called tally table, and these are called, the special in the tally table are tally marks, and tally marks are represented as I have told you earlier. 10 are represented like this, 6 like this, and so on. So this completes your tally table of what you have noted down in your notebook in your class. We are not naming every student here. We are combining them, combining 10 students because they like red color. The liking for red color is by 10 students of your class. No, we need not give the names of those students. So this is children tally table. Tally table बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम कि हमने क्लास 5 का सर्वे किया, हमने लिख लिया ये, और किस चीज का सर्वे किया, हमने खेल का, खाने का नहीं किया, हमने कलर की लाइकिंग का किया। कलर की लाइकिंग का करने के लिए हमने फेवरेट कलर लिख लिया है क्लास 5 में, बच्चों को कौन से कलर पसंद है, तो हमें नाम नहीं लिखने बच्चों के। अब हमने देखा और टोटल किया कि 10 बच्चे जो है हमारे रेड कलर लाइक करते हैं, 6 बच्चे ऑरेंज, ऐसे करके ये बच्चों की लाइकिंग है कलर के लिए। अब हमें तो टैली टेबल बनानी है, तो टैली टेबल बनाने के लिए टैली मार्क्स के बिना टैली टेबल नहीं बनती है, और टैली मार्क्स हमारे ये हैं। 10 को रिप्रेजेंट करने वाले टैली मार्क्स ये हैं, 4 स्ट्रेट आई बनाइए, 1 क्रॉस आई बनाइए, इट मेक्स 5। 5 and 5, 10, 5 plus 1, 6, 5, 5, 10, 1, 11, 5 and 4, 9 and 4 and so on। अब बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा टैली टेबल कैसे बनाई जाती है। अब मैं इमीडिएटली इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी और बता देता हूं।
फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको एक ये नया टर्म फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा, लेकिन उसे हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, हम उसे यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स the number of times an item occurs in a given data। अब आपने अपनी क्लास का डाटा इकट्ठा किया था और उसमें हमने देखा कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। 10 कलर हमें रिपीट हो रहा है, 10 बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स यानी 10 टाइम्स आपको आपकी क्लास में 10 बच्चों ने या 10 टाइम्स देयर इज ए लाइकिंग फॉर रेड कलर, इसलिए इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बच्चों टेली मार्क्स अब आप अच्छी तरीके से समझ गए, और टेली टेबल आप समझ गए कि हमने क्लास 5th ये ले लिया। इस किसके लिए हमने टेली बनाई है? कलर लाइकिंग के लिए, तो हमने कलर यहाँ लिख लिए, उसके टेली मार्क्स यहाँ लिख लिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दी, तो ये आपको टेली टेबल बना देता है। तो फ्रीक्वेंसी अब आप अच्छी तरीके से समझ गए कि इट इज द रिपीटेशन ऑफ डाटास। नाउ बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि ये टेली मार्क्स से अब आपने अपने डाटास को रिप्रेजेंट कर लिया। डाटास कौन से थे? आप अपनी क्लास में 5th में गए, आपने हर स्टूडेंट से उसका नाम लिखा और उसकी कलर लाइकिंग लिखी और इस टाइप से आपने उसकी टेबल बना डाली। जो आपने आपने क्या किया? आपने सर्वे किया क्लास 5th का, अपनी क्लास का, और उसमें आपने जो नोट किए वो डाटा थे, आपने वो डाटा नोट किए, और डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है टेली टेबल। और टेली टेबल किस तरीके से बनाई जाती है? तो हमने एक रॉ डाटा को एक टेबल के फॉर्म में यहां बना दिया। अब इन्हीं डाटा को हम दूसरे तरीके से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किया जाता है पिक्टोग्राफ के रूप में। बच्चों, पिक्टोग्राफ क्या होते हैं? रिप्रेजेंटिंग ए डाटा in its picture form। पिक्चर बना के इस डाटा को रिप्रेजेंट करना। तो ये भी बच्चों ये चैप्टर 9 बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पिक्टोग्राफ मीन्स हमने ये टेली मार्क्स नहीं बनाने, टेली मार्क्स वाली टेबल अलग है, पिक्टोग्राफ बनाना है हमें। तो हम बच्चों पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए, कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, इस टेली टेबल को ही हम बनाने की कोशिश करते हैं पिक्टोग्राफ।
रेड कलर। बच्चों रेड कलर पसंद करने वाले कितने बच्चे थे? 10। तो हम एक रेड डॉट बना देंगे यहाँ, रेड डॉट। 10 हमको रेड डॉट्स बनाने। Children, these are 10 dots. Here I am marking them in black color. You can mark them in red color. Every particular can be marked with that particular color. So red color can be marked for 10. Means 10 students were liking red color. So how I have represented as a pictograph? This is not tally table. This is pictograph. Why this is pictograph? Because we are writing these datas, we are arranging these datas in the picture form. Red dots, similarly, orange were 6. And so on. So children, again you have arranged the data which you collected in your notebook in your class, but not by tally marks, it is by picture. In picture what you have taken? Red dots for red color, orange liking for in orange color, orange is liked by 6 students, yellow was liked by 5 students, so you can make 5 yellow marks. And green was liked by 11 students, so 11 green marks. This children, so this makes your pictograph. But further, one thing what you have to do here is, because 10 students of your class like red color, so what does this one dot represents? You have to write here as a note. My one dot represents one student, because the survey was not of dots, this was the survey of students liking different colors. बच्चों ये पिक्टोग्राफ बन गया। पिक्चर में जो जितने एक अगर हम यहाँ जैसे रेड कलर्स जो है 10 डॉट से बताया गया क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम इन्हें 5 डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ नोट में लिखना पड़ेगा कि 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स। अगर हम जैसे यहाँ लिख देते हैं, लेट मी टेल यू फॉर ब्राउन, ब्राउन कलर में मान लीजिए मेरे पास 4 स्टूडेंट थे, तो मैं ब्राउन को 2 डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 4 स्टूडेंट को, लेकिन मुझे इसकी स्केल यहां रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये मेरा 1 डॉट 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, इट वाज इजी टू make 10 dots, easy to make 11 dots or 6 dots and so on. So I have represented, so my 1 dot represent 1 student. So this representation is called pictograph. बच्चों आप पिक्टोग्राफ समझ गए होंगे। इसका स्केल ये होता है कि अगर आप ये 1 डॉट यहाँ लिख देते हैं कि ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी आदमी इस पिक्टोग्राफ को जब रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि क्लास 5th में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 10 रेड कलर पसंद करने वाले 10 स्टूडेंट हैं, तो इस बच्चे ने इन 10 स्टूडेंट को 10 डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये डॉट की जगह हम कोई भी फिगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये स्टूडेंट की फिगर बनाई इस टाइप से, ये स्टूडेंट हो गया, ये इसका हाथ है,
हमें अगर 10 स्टूडेंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो हमें इस टाइप के ये 10 फिगर्स बनाने पड़ेंगे। टेन फिगर्स बनाने पड़ेंगे। अगर हमें ये 10 फिगर्स मीन्स one figure represents one student। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और मुझे पिक्टोग्राफ बनाना है तो मैंने इस तरीके से एक स्टूडेंट बनाया और 10 स्टूडेंट की ऐसी फिगर बना के 10 स्टूडेंट मैंने लगा दिए। तो मैं नीचे लिखूंगा स्केल में कि माई वन फिगर रिप्रेजेंट्स वन स्टूडेंट। अगर मुझे ये 10 फिगर्स बनाने में परेशानी हो रही है तो मैं क्या करूंगा कि स्केल में मैं लिख सकता हूं कि वन स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स वन स्टूडेंट्स इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। वन फिगर ऑफ दिस स्टूडेंट इज रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स। तो मुझे 10 स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स 5 फोटोग्राफ्स इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। इसमें स्केल एक मेरा ये स्टूडेंट 2 को रिप्रेजेंट करता है तो मुझे 10 फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम 5 फिगर में ही हो जाएगा क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट 5 को शो कर रहा है। अब कभी कभी क्या आ जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है पिक्टोग्राफ में कि कोई चीज ऐसी है, मैंने मान लीजिए मुझे 5 स्टूडेंट, मेरा स्केल यही है, एक फिगर मेरा मान लीजिए मेरा एक फिगर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, वन फिगर represents two students। जब मेरा ये एक तरह से एक स्केल बना दिया मैंने कि मेरा एक फिगर जो है, तो मैं पिक्टोग्राफ बनाने के लिए अगर मुझे 4 स्टूडेंट शो करने हैं, फोर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे बच्चों आप, what you will do, you will make 2 such type of figures। मेरे पिक्टोग्राफ में अगर मुझे 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं और मेरा स्केल ये है कि 1 फिगर मेरा रिप्रेजेंट करता है 2 स्टूडेंट्स को, तो 4 स्टूडेंट्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, दीज 2 फिगर्स विल रिप्रेजेंट बाय 4 स्टूडेंट्स। अब कभी कभी बच्चों जो मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा था कि व्हाट यू विल डू फॉर 3 स्टूडेंट्स। आपको 3 स्टूडेंट्स अगर आपको रिप्रेजेंट करने तो कैसे करेंगे, तो बच्चों इसमें ही जो सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज आती है कि हम 3 स्टूडेंट्स बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो एक तो पूरा हो गया, दिस विल रिप्रेजेंट 2 एंड एक को हम अधूरा स्टूडेंट बना देते हैं। हाउ हाफ स्टूडेंट इज रिप्रेजेंटेड, half student is represented like this, it is having only 1 limb and 1 foot, so this represent my 3 students in a pictograph. This is one more interesting factor regarding the pictograph. So children, now you have easily understood about the pictographs। पिक्टोग्राफ में किसी डाटा का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है और उसमें जिस तरीके से मैंने ये बताए हैं फिगर्स, उस तरीके से हम
पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। हम कोई भी शेप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इस टाइप की है कि अगर मैं एक एप्पल शेप में ले लेता हूं, अगर मैं इस टाइप का एक शेप ले लेता हूं, ये मेरा मान लीजिए चार स्टूडेंट के लिए मुझे इस टाइप के ये 2 फिगर बनाने पड़ते हैं, तो 3 स्टूडेंट के लिए मुझे इस टाइप से ये फिगर बनाना पड़ेगा। इट विल रिप्रेजेंट माई 3 स्टूडेंट्स लाइक दिस। सो चिल्ड्रन, अब अच्छी तरीके से आप पिक्टोग्राफ भी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। Children, bar graph is also the way of representing a data in the form of a rectangular bar. बच्चों, बार ग्राफ क्या होता है? ये भी डाटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर बार छड़ को भी कहते हैं। एक रेक्टेंगुलर छड़ी टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डाटा को। अब मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। There are 5 play schools in a city. In play school A, there are 200 children. In play school B, there are 150 children. In play school C, there are 250 students. In play school D, there are 50 children, and in play school E, there are 100 children. Draw a bar graph to represent the above data. चिल्ड्रन, हमने कुछ एक स्कूल का जो है सर्वे किया। हमने कई स्कूलों का सर्वे किया। एक प्ले स्कूल ए था जिसमें हमें 200 चिल्ड्रन मिलते हैं, ऐसे प्ले बी था जिसमें 150 चिल्ड्रन मिलते हैं, एंड सो ऑन। तो हमने ये सर्वे किया और ये डाटा इकट्ठा किया। अब इस डाटा को हम
हमें कलेक्ट करना है, तो डाटा इट कैन बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैली, इट कैन बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, एंड इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। क्योंकि इसमें डाटाज में जो एंट्रीज हैं, जो डाटाज हमको मिले हैं वो बड़े हैं, इसलिए टैली मार्क बनाने में हमें परेशानी होगी, टैली टेबल बनाने में। और पिक्टोग्राफ हम इजीली बना सकते हैं इसका, और मैं आपको यहाँ बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ। चिल्ड्रन, आई नाउ शो यू हाउ ए बार ग्राफ इज मेड। To make bar graph, we draw two lines, two perpendicular lines. One is this line is called horizontal line, and we represent it. Now try to remember the things carefully, children. Here we require a little care from you. This horizontal line is called x-axis, and this vertical line is called y-axis. We are surveying schools, so we will take here play schools, and what we found there, we noted down the number of children. Now the number of children is minimum is 50 and maximum is 250. So how we can represent such big numbers on a number line? So the lines crossing at each other is called original, 0. Now we mark this line, we divide this line into different parts, each part representing 50 students. 50, and at the same distance 100, and at the same distance 150, 200, and 250. We have marked the number of students on y-axis. Up to 250 students we can represent, and one of the play school is having 250 students. Now what we do, how we represent play school A. Play school A is having how many children? 200. So we have made a rectangular bar at match labeling at 200 here and with base A here. This rectangular bar represents my play school A, which is having 200 students. The next play school is having B is having, now here I take B play school, and it is having 150 children. So with 150 students can be represented like this. Now the play school is C. It is having 250 students. This bar represents 250 students, labeling at this height. And D, play school D is having 50 children. So one more play school is there, so children, I can extend this axis. Here I take E.
and E is having 100 children. So this is called bar graph, children. This is representing our data which we have collected from different schools. Now, further to understand it more clearly, बार ग्राफ ज्यादातर ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया जाता है और बार ग्राफ पेपर में ऐसी मार्किंग्स होती है, उसमें बॉक्सेस होते हैं, एंड ईच बॉक्स इन ए ग्राफ represents 1 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे हम ये मार्किंग करेंगे. जैसे प्ले स्कूल हमारा ए, प्ले स्कूल ये ए, ये बी, ये सी. तो ए बी सी डी हमें कितने प्ले स्कूल मार्क करने हैं? 1 2 3 4 5. तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसमें से जो ग्राफ पेपर में एक बॉक्स जो सेक्शन बना हुआ है उस पूरे एक सेक्शन को ले लेंगे ए के लिए, पूरे दूसरे सेक्शन को ले लेंगे बी के लिए, सी के लिए, ऐसे करके इक्वल, या उसमें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस पे 5 मार्क लगा देंगे. एक पे ए लिख देंगे, एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई लिख देंगे. अब जो मार्क, जहां पॉइंट हमने ए मार्क किया है, ये पॉइंट, इससे भी इक्वल डिस्टेंस लेके दोनों साइड पर, जैसे ए पॉइंट हमारा यहाँ है तो एक बॉक्स इधर ग्राफ पेपर में, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर का डिस्टेंस लेके हम जो लाइन अवेलेबल है उन पर सीधी लाइन खींच देंगे और अप टू 200 पे जो हमारा बॉक्स आएगा वहां तक ले जाएंगे, एंड दैट विल रिप्रेजेंट योर 200 स्टूडेंट. तो बच्चों ये यहाँ तो जैसे यहाँ पर हमने बोर्ड पर बनाया है, ये ग्राफ पेपर नहीं है. ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए आपके टीचर और अच्छी तरीके से समझा देंगे. ग्राफ पेपर पे हर वो मार्किंग होती है, वो मार्किंग आपको ये इक्वल डिस्टेंसेस बनाने के लिए हेल्प करेगी. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, जहां भी ये लगाने इक्वल डिस्टेंस पे, तो हाँ आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस पे ग्राफ पेपर में ये पॉइंट लगा सकते हैं. अब इसके बाद इक्वल डेप्थ, इक्वल विड्थ की ये रेक्टेंगल बनाने के लिए जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उससे एक डिस्टेंस इधर जितना लेंगे, डिस्टेंस इतना इधर लेफ्ट पे, उतना ही डिस्टेंस उधर राइट पे लेके जो लाइंस अवेलेबल हो ग्राफ पेपर में, उन ग्राफ पेपर उस पे स्केल रख के वो आप ये रेक्टेंगल खींचे जा सकते हैं. तो बच्चों ये समझ गए होंगे आप. और यहाँ भी हर सेक्शन में ग्राफ पेपर का जो सेक्शन है, मैंने हर सेक्शन पे 50 का एक स्केल ले लिया है. तो ग्राफ पेपर में क्यों 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, तो आई विल राइट ए स्केल हियर, स्केल 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्राफ पेपर और 1 बॉक्स ऑफ ग्राफ पेपर is equal to 50 स्टूडेंट्स. मैंने ये कितने का लिया? 50 स्टूडेंट्स का. बच्चों आप 200 का भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ वो बहुत छोटा हो जाएगा. हम 50 स्टूडेंट्स की जगह अगर हम यहाँ स्केल की हमारा एक बॉक्स 100 स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा और यहाँ पे 300 हो जाएगा. तो हमारे ग्राफ इतने 2 सेक्शन में ही ये पूरे बन जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय बार ग्राफ. अब इसमें एक मोर इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो तीनों, जो टेलीमास में या पिक्टोग्राफ में या बार ग्राफ में कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड आपने बार ग्राफ बना दिया. ये आपके पास एग्जांपल है, ये डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बेस पे ये ग्राफ बना दिया.
अब इसमें वो कुछ क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं. फर्दर क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन आफ्टर मेकिंग दिस बार ग्राफ इन सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स. कैसे पूछे जा सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन विच प्ले स्कूल the quantity of children is most. So then you will in answer what you will write, where in which play school you are finding more students. In play school we have 250 students. So how you will answer those questions? कि in play school C there are maximum number of students. दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है in which play school you have minimum number of students. तो how you will answer it? In play school D we have minimum number of students. What is the minimum number of students? Minimum number of students is 50. अच्छा, तीसरा, now the third question can be asked, what is the total number of students in play school B and play school D? Therefore, how you will do it? In play school you are finding 150 students, in play school D you are finding 150 students, and making that adding these two students we get 200 students in play school B and D. So you can very well answer. These are most simple questions that are asked in bar graph, in pictograph and in telemarks. So the types of questions that are generally asked, I have orally asked you. मैंने बच्चों मौखिक रूप से आपको बता दिया है कि किस तरीके से इनसे रिलेटेड, ये तो आप बार ग्राफ बना दिया, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया. इसमें फर्दर पार्ट और हो सकते हैं क्वेश्चंस के. वो ये हो सकते हैं किस स्टूडेंट्स, किस प्ले स्कूल में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं, किस प्ले स्कूल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, किन दो प्ले स्कूलों में मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं, किन प्ले स्कूल ए और प्ले स्कूल ई के स्टूडेंट्स बताइए मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं. इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और जो बड़े इजीली आंसर किया जा सकता है. बच्चों मैं समझता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. थैंक्स.